Assalamualaikum, dear students. Today we study Unit 1 Set Revision. Set is a fundamental in all branches of mathematics. Set is a well-defined collection of distinct objects which are called elements. Set are denoted by A, B, C, X, Y, Z. Elements are denoted by A, B, C, X, Y, Z. Example: A is an element is a set of A. A is a set and A is the element of A. It is the sign of element. Subsequently, putting the set of numbers. First set is a natural number. It is denoted by n. It starts from 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Second set is a whole number. Whole number is denoted by W. It starts from 0, 1, 2, 3. Integers. Integers has no fractional part and no digits after the decimal point. It can be positive, negative, or 0, like this. It is denoted by Z. Prime numbers. Prime numbers, those numbers which are divided by itself. It is called prime number. It is denoted by P, like 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Odd numbers. Odd numbers cannot be divided exactly in pairs. It is denoted by O. Even numbers, they are the pair numbers. It is denoted by E. Rational numbers, no expression fraction of two integers, like P is a numerator and Q is the denominators. Irrational, irrationals are all the real numbers and it is denoted by Q complement. What is the real numbers? Real numbers are the all numbers which are fractional, which are decimals, which are normal numbers are real numbers and it is denoted by R. Next slide is notations. There are two types of notation: tabular form notations and set builder notations और descriptive form. सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है या तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जाता है. अगर हम इस तरीके से लिखेंगे डिजिट्स में तो यह टेबुलर फॉर्मिंग होगी, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ऑड नंबर है, इंटीजर नंबर है, प्राइम नंबर है या कौन सा नंबर है, तो वो उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा या उसको हम सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं. सेकंड एग्जांपल, null set. Null set means have no elements. The set have no elements is called null set. Finite set. Finite sets can be specific or countable, जो कि काउंट किए जा सकते हैं. Infinite sets are the uncountable or not finite, जिसकी कोई लिमिट ना हो. There is a no limits is called infinite sets. Equal set. The set having the same elements are said to be a equal set. Like this, A is a ABCD and B is equal to BCAD. These are the same elements. When elements are same, it's said to be a equal set. It is the sign of equal. An equivalent set, the set A and B are the equivalent. Its corresponding can be established between their elements. If set If set A is equivalent to set B, then writes to be it is the equivalent sign. Okay, or A is equal to A, B, C, D, E, and B is equal to B. 2, 3, 4, 5, 6. C is equal to A equivalent होगा B के और B equivalent होगा C के. Why? Because they have five elements. They have also five elements, but they are not same. They are not same. It is English alphabets and it is the counting. So it they are not equal. They are not equal but equivalent. They are not equal but equivalent. Okay. Next is the subset. Set of A is said to be a subset of set B if every element is also an element of B. We use notation this. Okay, it is the sign of subset and
नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है, सारे सेट्स का सबसेट नल सेट होता है। ठीक है। और सबसेट का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स बी के अंदर पाए जाते हैं, ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के अंदर पाए जाते हो तो उसका सबसेट कहलाता है। हमारे proper subset, it is the sign of proper subset. When we write A is equal to ABC, B is equal sorry A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 3 5. Then we write it into first set is a null set, then to 1 2 3 5. Okay, it is the proper subset. We do exercise 1.1. Use both tabular and z-builder forms of specify the following sets. The set of positive integers greater than 2 and less than 6. ऐसे डिजिट्स जो कि 2 से बड़े होंगे और 6 से छोटे होंगे तो हम उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो 2 से जो बड़े होंगे वो होंगे 3 4 5 और 6 से ये छोटे होंगे। उन दोनों के बीच में जो डिजिट्स आते हैं उनको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है और उनको सेट बटन नोटेशन में लिखना है। Then with positive integers has less than 20 that are divisible by 5. 20 से छोटे जो कि 5 से डिवाइड हो सकते होंगे हमने उनका सेट बनाना है। तो 20 से छोटे होंगे 5 10 एंड 15 जो कि आराम से 5 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी, ये इसकी सेट फॉर्म। The set of natural numbers between 4 and 12. Natural number starts from 1 2 3 4 5. Okay. Between the 4 and 12, तो इन दोनों के बीच में यानी 4 से बड़े और 12 से छोटे 5 से लेकर 11 तक बनेंगे। तो ये सारे के सारे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका टेबुलर फॉर्म है और ये इसका सेट बना है। A set of 6 positive prime numbers. Prime numbers वो जो कि खुद पे डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17। तो पहले 6 प्राइम नंबर जो है वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2. Following are a null set. Which are the following are null set? X is letter placed before A in the alphabet, English alphabet. English alphabet में A से पहले क्या आता है? कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? null set हो जाएगा। ठीक है। No letter before A is in English alphabet. English alphabet के अंदर A से पहले कुछ भी alphabet का digit नहीं आता, तो वो क्या हो जाएगा? null set हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. x plus 5 is equal to 5. अगर हम इस 5 को इक्वल किस तरफ लेकर जाते हैं तो x is equal to 5 minus 5 हो जाएगा। 5 minus 5 is equal to x is equal to 0. अब आप देखिए x के पास कुछ ना कुछ डिजिट है, बेशक वो 0 ही है लेकिन खाली नहीं है। ठीक है, 0 है, इट मींस इट इज नॉट अ नल सेट। x is less than 7 and greater than 8. लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8 यानी 7 और 8 के बिटवीन क्या आता है? तो कुछ भी नहीं। 7 के बाद डायरेक्ट 8 ही आता है, तो ये भी नल सेट ही कहलाएगा। X is the past president of Pakistan who was a woman. There is no woman is the president in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर कोई भी वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these sets are finite and which are infinite sets. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट की डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि जो काउंटेबल होंगे वो फाइनाइट, जो अनकाउंटेबल होंगे वो इनफाइनाइट सेट्स होंगे। द मंथ ऑफ द ईयर, yes it is finite because we can count the months in a year. The days in the year, yes we can count how many days are in a year. Okay, the students of a class, yes it is countable, हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। It is incountable because there is no limit. Okay, so it is infinite set. The set of lines passing through a dot. एक डॉट में से कितनी लाइंस को क्रॉस किया जा सकता है, तो ये इनफाइनाइट है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। The set of lines passing through given points. टू गिवन पॉइंट्स के बीच में कितनी लाइंस पास कर रही हैं तो वो काउंटेबल हो सकती है क्योंकि उसकी लिमिट दी गई है। ओके, तो इट इज फाइनाइट सेट। Question number 4.
x is a positive integer, find proper subset of s that are also subset of a. So s is a positive integers. Positive integers 1 2 3 4 5 so on and a इसमें बताया जा रहा है कि इंटीजर लेस देन 3, लेस देन 3 तो मीन्स के 1 एंड 2, ओके 1 एंड 2 हमने सबसेट बनाने हैं ए तो सबसे पहला जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा, नल सेट होगा खाली, फिर उसके बाद 1 फिर 2 फिर 1 एंड 2, ठीक है, पहले नल सेट फिर सिंगल 1 फिर सिंगल 2 को लेंगे और फिर कंबाइन करेंगे 1 एंड 2, तो इसके जो प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो कितने बनेंगे, 4 सेट्स 1 2 3 4, ओके। use the set builder form of giving example of null sets. सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ नल सेट्स कैसे लिखेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ नल सेट्स मींस कि हम पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव में से नेगेटिव करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0। तो वो एग्जांपल नल सेट का होगा। जैसे अगर आप x इज अ पॉजिटिव, यहाँ पर कोई भी डिजिट आप पॉजिटिव रखते हो, जैसे 5 रख लो, 4 3 2 1 कुछ भी, इसी तरीके से उसी डिजिट को उसमें से माइनस कर दो तो आंसर क्या बनता है आपके पास, 0। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के रखते हैं और यहाँ पर नेगेटिव के रखते हैं तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। इन वर्ड्स हम कैसे कह सकते हैं, A is a set of x such that x is a positive and x is negative। अगर x पॉजिटिव होगा और दूसरा x नेगेटिव होगा, A is an empty set of null set, तो A क्या हो जाएगा हमारे पास, null set हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है which of following are the equivalent set। equivalent set कौन सा है, equivalent का हमने साइन आपको बताया था, ये होता है इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक जितने एलिमेंट्स हो, यानी क्वालिटी सेम ना हो बेशक लेकिन क्वांटिटी सेम हो, ठीक है। तो ए बी सी देयर आर 3 एलिमेंट्स आर इन सेट ए, 1 2 3 देयर आर 3 एलिमेंट्स आर इन अ सेट बी, तो इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, जब क्वांटिटी सेम है तो क्या होगा, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। ए have a 4 elements and B have a 3 elements, so it is not equivalent set, it is not equivalent set। x is positive integer less than 6, x is positive यानी a के पास जो सेट होंगे वो लेस देन 6 होंगे, 1 2 3 4 5, ओके। b के पास क्या है, a e i o u, तो A के पास A have a 5 elements, B have also 5 elements, so that तो हम क्या कहेंगे कि A is equivalent to B set। Now we start the exercise 1.2. Here it is. Question number 1 is given that the set A equals to this and B equals to this are subset of universal set. Universal set is the elements of we find A complement, B complement and B sets. Okay. Question number 1, A complement. First of all, when we find out the A complement, we must minus from union. Okay. A complement is equal to union minus A। यूनियन में से एक को माइनस करना है, यूनियन के हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स बताए गए थे वो हमने लिखे, बीच में साइन हमने कौन सा डाला, माइनस का, और ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जितने भी वैल्यूज हैं इनको माइनस करना है इसमें से, यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी, जो भी रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वो हमारा आंसर, ठीक है। ए माइनस हो जाएगा, सी माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यूज है, बी डी जी, ठीक है। तो हमने बी डी जी को आंसर वैल्यू पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनियन में से बी को माइनस करें। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनियन में से बी को माइनस करें। तो हमने सबसे पहले क्या रखा, यूनियन माइनस बी, सबसे पहले हमने सेट में वैल्यूज रखी यूनियन की माइनस बी की वैल्यूज रखी, ठीक है। अब हमने माइनस करना है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, ई जी डी
माइनस होगी, जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी हमने आंसर में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सेम वैल्यूज या फिर कॉमन वैल्यूज बिटवीन द ए एंड बी। जो भी वैल्यूज कॉमन होंगी वो हमने लिखनी होंगी, ठीक है। और ए और बी सेट के बीच में जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी वो हमने लिखनी होंगी। तो हमने क्या करना है, सेट ए की वैल्यूज लिख दी, यहाँ पर एलिमेंट्स उसके लिखे, इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब दोनों में जो भी वैल्यूज कॉमन है या सेम है वो हमने रखनी है। दोनों में एफ है, एफ रखा, और ई दोनों के अंदर कॉमन है तो हमने ई, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन बी को माइनस करो यूनियन बी से। तो हमें सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करना होगा, ठीक है। ए यूनियन बी मालूम करेंगे। यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिखना। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करके लिखना, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के एलिमेंट रखे, यूनियन बी के एलिमेंट रखे, दोनों को कंबाइन करके रख दिया तो हमारे पास ये आंसर आया कंबाइन करने के बाद। देन फिर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए यूनियन बी। यूनियन में से माइनस करना है ए यूनियन बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने यूनियन की वैल्यू रखी, साइन बीच में कौन सा है, माइनस का साइन डाला, उसके बाद ए यूनियन बी की वैल्यूज रख दी। अब हमने दोनों वैल्यूज में से कट करना है, ए कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, एफ कैंसिल, जी कैंसिल। अगर आप यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर हमारे पास बी रिमेनिंग है और यहाँ पर हमारे पास ई रिमेनिंग है, ठीक है। तो हमें इस वाले सेट में कुछ भी रिमेनिंग हो वो हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास काम की वैल्यू होंगी और वही हमारा आंसर है, ठीक है। फर्स्ट यूनियन के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू यहाँ पर रिमेनिंग होगी वो हमारा आंसर होगी, तो बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास ए के ऊपर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सिंपल वैल्यू है। सबसे पहले हमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सॉल्व करनी होती है। सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सॉल्व करनी होती है अगर वो सिंगल डिजिट्स की हो तो। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, वही फॉर्मूला यूनियन माइनस बी। यूनियन में से बी की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए की वैल्यूज रखी, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमने आंसर दिया है ये वाला, ये हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। दोनों में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मीन्स के कॉमन वैल्यूज या फिर सेम वैल्यूज, दोनों में कॉमन क्या है, ए एंड सी, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी यूनियन माइनस ए, जो कि हमने मालूम कर लिया। फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी यूनियन माइनस बी, ये भी हमने मालूम किया। अब हमें इसका और इसका आंसर निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन की जगह पर हम ये लिखेंगे जो हमने इसका आंसर आया है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर रखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, ओनली बी, इट इज अवर आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन यूनियन यूनियन नल सेट। नल सेट, इसका आंसर क्या आएगा, आप किसी भी सेट को, सेट के अंदर कंबाइन करें नल सेट को तो आंसर क्या आएगा, जो आपका पहला सेट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इन केस एग्जांपल ए यूनियन नल सेट होता तो आंसर यहाँ पर ए आता, यहाँ पर बी यूनियन नल सेट होता तो आंसर बी आता। तो यहाँ पर क्या है, यू यूनियन नल सेट, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यू, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनियन इंटरसेक्शन नल सेट। यूनियन इंटरसेक्शन नल सेट, यानी यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स दिए हुए होंगे जैसे 1 2 3 4, उसको आप इंटरसेक्ट करो 0 के साथ या नल सेट के साथ, तो आप किसी भी, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता क्योंकि एक सेट बिल्कुल खाली है और एक सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है।
इसका आंसर क्या आएगा? नल सेट. ओके. It is the question number 2. Given the set x is a positive even integer less than 10. Less than 10 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It is a less than 10 positive even integers. Set B is a x is positive odd integer less than 10. Odd integers. Odd integers means 1, 3, 5, 7, 9. Okay. It is the positive integers less than 10. Sorry. Even जो थे वो होंगे 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 और ओड जो होंगे 1, 3, 5, 7, 9. और पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कि लेस देन 10 है, तो वो क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज A union B complement. Question number 10 is A complement intersection B complement. चलिए इनको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 A union B complement. सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? B complement. तो सबसे पहले हमने B complement मालूम किया जो कि हमारे पास क्या होगा यूनियन माइनस बी. यूनियन माइनस बी. हमने क्या किया यूनियन की वैल्यू रखी और बी की वैल्यू रखी जो कि हमारे पास क्या था odd number less than 10. Odd number तो देखो less than 10 होगा तो क्या होंगे 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है. हम पे माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है. इसके बाद हमें क्या करना है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट रखा. A के एलिमेंट्स रखे यूनियन साइन. B कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो आंसर आएगा हमें वो रखना है ये वाला आंसर. ठीक है हमने ये रख दिया. यूनियन का मतलब क्या होता है कंबाइन करके रखना. दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर जो बना वो. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ पर फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वी पुट द वैल्यूज of union minus and now we putting the value of a. जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये बनता है. फिर हमने क्या करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले हमें जो वैल्यू यहाँ पर रखनी है वो ये वाली वैल्यू क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दी गई है. हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखी ये वाली. इंटरसेक्शन का साइन लगाया और हमारे पास जो बी की वैल्यूज है हमने वो लिख दी. दोनों को इंटरसेक्शन किया. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज या फिर सेम वैल्यूज. जो इनके अंदर कॉमन वैल्यूज होंगी वो इसका आंसर निकलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मालूम कर चुके हैं तो इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया. बी कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में मालूम किया था तो हमने उसका आंसर लिख दिया. ये देख लें ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 10 में मालूम किया था और ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 9 में मालूम किया. ठीक है. तो हमने ये दोनों वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ पर लिखी. आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा. पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनियन माइनस ए हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनियन माइनस बी हो जाएगा. ठीक है. तो हमने क्या किया हमने डायरेक्ट यहाँ पे किया है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हमने आंसर लिखा. दोनों के बीच में इंटरसेक्शन किया है. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सेम वैल्यूज और कॉमन वैल्यूज. तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है ना ही कोई सेम वैल्यू है तो फिर ये क्या हो जाएगा नल से इसका आंसर. ठीक है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी. सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है हमें ए एंड बी का. सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ये याद रखिएगा. ठीक है. ये फॉर्मूला याद करना है आपको. ए यूनियन बी इज इक्वल टू सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे. जो आंसर आएगा उसको हम यूनियन मीन्स कंबाइन करना. यूनियन मीन्स कंबाइन करना.
ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू रखी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखी। ठीक है, दोनों में जो वैल्यू कॉमन होंगी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो हम रखेंगे, दोनों में कोई कॉमन नहीं तो ये नल सेट आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करने के लिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के हमने आंसर, ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा ये वाला हमने ये रखना है, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, तो हमने माइनस का साइन रखा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है, नल सेट खाली, इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, इस पूरी वैल्यू में से इसको माइनस करें तो आंसर आपके पास क्या बनता है, यही पूरी वैल्यू बनेगी, हमने ये रखा। ये हमारा आंसर हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।